اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے اور اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، گزشتہ کل ریاست مہاراشٹر کے اکولا ضلع کے اکوٹ شہر میں بہت شاندار پروگرام مسجد قباء اور شادی ہال کے سامنے جو گراؤنڈ ہے غازی نگر میں، وہاں مسجد قباء کا بہت شاندار پروگرام مکتب کا منعقد کیا گیا تھا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں مردوں خواتین نے شرکت کی۔ مکتب کے بچوں کا بڑا شاندار پروگرام ہوا، اسٹیج پر تمام علماء کرام بڑی تعداد میں شریک رہے۔ گزشتہ کل مجھے ہی وہاں پر مقرر خصوصی اور صدر جلسہ کے طور پر بلایا گیا تھا۔ الحمدللہ میں وہاں پر مغرب میں پہنچا۔ مغرب کے بعد جیسی ہی میری اتوارہ مسجد میں نے مغرب کی نماز ادا کی، اور وہاں سے جب پھر ہم لوگ غازی نگر میں جب پہنچے تو غازی نگر کے جوانوں کی محبت کو سلام، بڑے جوش و خروش کے ساتھ، بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ پھولوں کی بارش انہوں نے مجھ پر، میری گاڑی پر برسائی، اور زبردست انداز میں نعروں کے ساتھ محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے استقبال کیا۔ اس پروگرام میں بچوں کی دینی، ایمانی، اسلامی تربیت کو لے کر اور ملک کے موجودہ حالات کو لے کر الحمدللہ میری 1.25 گھنٹے کی تفصیلی گفتگو ہوئی، تفصیلی بیان ہوا۔ یہ پروگرام بڑا شاندار، بڑا کامیاب رہا۔ وہاں کے علاقے کے ہر دل عزیز اور بڑے قد آور نیتا ہے جناب خواجہ صاحب، ان کی سرپرستی میں یہ پروگرام چلا۔ پروگرام کے بعد پھر انہوں نے مجھے وہاں سے الوداع کیا۔ خیر، اکوٹ شہر کا یہ پروگرام بڑا کامیاب رہا۔ میں دل سے ان لوگوں کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں، اور پھر آئندہ 17 مارچ کو یعنی 6 دن کے بعد آنے والے جمعہ کو پھر اکوٹ کے مجیدیہ پلاٹ، مجیدیہ نگر میں بہت شاندار پروگرام ایسے ہی ہوگا، جس کی سرپرستی انجمن فلاح ملت کر رہی ہے۔ حافظ عبدالرشید صاحب، حافظ مستقیم صاحب، مولانا فیاض صاحب، تمام کی پورا گروپ ہے، مولوی فیض صاحب، افضل صاحب، ان لوگوں کی سرپرستی میں مولانا حافظ نقیب صاحب کے مکتب کا جلسہ ہوگا آئندہ جمعے کو 17 مارچ کو مغرب کی نماز کے بعد۔ اس میں بھی آپ تمام حضرات اکوٹ اور آس پاس کے لوگ شریک رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے، جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ملک کے جرنلسٹ اور پترکاروں کی، صحافیوں کی ایک سب سے بڑی تنظیم ہے وائس آف میڈیا، اور وائس آف میڈیا کے سنستھاپک ادھیکش ہے سندیپ جی کاڑے،
اور پوری کی پوری ٹیم ہے. ہمارے مہاراشٹر کے ادھیکش ہے راجا مانے سر، اور ایسے ہی اس پوری ٹیم نے جو صحافیوں کی، پترکاروں کی بڑی سنگٹھن ہے وائس آف میڈیا، اس نے مجھے پورے ہندوستان کا، پورے بھارت کا اردو وبھاگ، اردو ونگ کا مجھے نیشنل پریزیڈنٹ بنایا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وائس آف میڈیا کا 2 दिवसीय कार्यशाला चिंतन बैठक एक तरबियती प्रोग्राम रियासत महाराष्ट्र के खूबसूरत शहर बारामती में हो रहा है. आज 11 और 12 मार्च का 2 दिन का ये वॉइस ऑफ मीडिया का बारामती के जो क्लब है, वहाँ पर एक शानदार क्लब है बारामती क्लब, जो बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहाँ पर ये प्रोग्राम होने जा रहा है वॉइस ऑफ मीडिया का. आज तो शनिचर है, मेरा प्रोग्राम अकोला में है, अकोट में है, इसलिए मैं आज नहीं पहुंच पाया. लेकिन आइंदा कल मैं खुद, यानी 12 मार्च की सुबह 8 बजे इंशाल्लाह मैं खुद भी वॉइस ऑफ मीडिया के इस आखिरी प्रोग्राम में 12 मार्च की सुबह 8 बजे बारामती इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा. वॉइस ऑफ मीडिया मुल्क की वो संगठन है जो पॉजिटिव जर्नलिज्म, सकारात्मक पत्रकारिता पर यकीन रखती है और अपनी पूरी टीम को इसी की नसीहत करती है. और इसी के साथ ये वॉइस ऑफ मीडिया बड़ी तेज़ी से पूरे मुल्क में आगे बढ़ रही है. तकरीबन 25 से 27 मुल्क की 25 से 27 स्टेट्स में वॉइस ऑफ मीडिया का नेटवर्क कायम हो चुका है और तकरीबन 25 से 30 हज़ार मुल्क के पत्रकार, जर्नलिस्ट इस मोमेंट, इस तंजीम और इस संगठन से जुड़ चुके हैं. आप देख सकते हैं तस्वीरें जो स्क्रीन पर दिख रही है, वॉइस ऑफ मीडिया का प्रोग्राम शुरू हो चुका होगा. अब तो जाहिर बात है कि 11 बज रहे हैं, शुरू हो चुका होगा, ओपनिंग हो चुकी होगी. लेकिन मुझे जो वॉइस ऑफ मीडिया की, यूँ समझिए कि मीडिया इंचार्ज बोले या जिसे संपर्क इंचार्ज बोले, जो बड़ी मेहनत करती है, दिव्या यशवंत भोसले, इन्होंने मुझे वो तस्वीरें रवाना की है जो प्रोग्राम के शुरू होने के पहले की है. बड़ी कामयाबी के साथ ये प्रोग्राम होगा. जिन जिन लोगों को वहाँ पर बुलाया गया है वॉइस ऑफ मीडिया के, वो तमाम लोगों से मैं अपील करूँगा कि वहाँ ज़रूर पहुँचे. और आप जानते हैं कि वॉइस ऑफ मीडिया के जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष है संदीप जी काले, बड़े एक्टिव है और हर एतबार से खुदा ने उन्हें ताकत बख्शी है, बड़े मजबूत है हर एतबार से. तो उन्होंने इस प्रोग्राम को भी बड़ी प्यारे अंदाज में सजाया है. हर आने वाले मेहमान के खाने पीने ठहरने का इंतज़ाम भी किया है. हम संदीप जी काले और पूरी टीम को दिल की गहराइयों से इस अच्छे 2 दिन के प्रोग्राम पर मुबारकबाद पेश करते हैं. आइए दिन बड़ी खबर इस वक्त, अफसोसनाक खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आप जानते हैं कि मुल्क भारत की ये एक ऐसी तंजीम है जिसमें तमाम मसलक, तमाम जमातों के ज़िम्मेदारान मौजूद है और ये एक मुत्तहदा प्लेटफॉर्म है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड. इस वक्त खबर आ रही है कि बोर्ड के नायब सदर मौलाना सैयद फ़खरुद्दीन अशरफ का इंतकाल हो गया. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. मुख्तलिफ हल्कों में गम की लहर है, मुरीदीन में भी रंजो मलाल है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे नाकाबिले तराफी नुकसान करार दिया है. कचोचा शरीफ के सज्जादा नशीन भी थे आप, जिसके बाद उनके इंतकाल के बाद इल्मी हल्का उनके मुरीदीन के माबैन शदीद रंजो मलाल है. सैयद फ़खरुद्दीन अशरफ हज़रत मखदूम अशरफ के ख़ानदान से आप ताल्लुक़ रखते हैं. इब्तदाई तालीम कचोचा शरीफ में हुई और आला तालीम हासिल करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आपने रुख किया था, जहाँ पर आपने LLB की डिग्री भी हासिल की. उसके बाद अम्बेडकर नगर के मकामी अदालत में आपने वकालत का पेशा भी अपनाया. बाद में कचोचा शरीफ दरगाह के सज्जादा नशीन भी बने. खैर, आपकी बड़ी खिदमत हैं. हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाएँ और उनके अहल खाना को अल्लाह सब्र जमील अता फ़रमाएँ. हज़रत मौलाना खालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी साहब जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी है, आपने ताज़ियती बयान भी पेश किया है. और मौलाना सैफ़ुल्लाह रहमानी साहब ने फरमाया कि मरहूम बड़े मुस्लिह, मुरब्बी और बड़े ज़बरदस्त आलिम दीन थे और हज़ारों लोग उनके दामन तरबियत से वाबस्ता थे. एतदाल फ़िक्र मरहूम का ख़ास मिजाज था. वो मसलक व मशरब से ऊपर उठकर मिल्लत इस्लामिया के लिए काम करते थे और इत्तिहाद उम्मत के दाई थे.
आइए नाज़रीन, एक और बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। आप जानते हैं कि मुल्क में शरारतें लगातार की जा रही है और विकास तो कुछ नहीं हो रहा है। मुसलमानों की जायदादों से खा रहे हैं मगर मुसलमानों का नाम पसंद नहीं है। इस वक्त बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी का जो सवालात का पर्चा आया, उस सवालात में हैदराबाद का नाम हैदराबाद नहीं भाग्यनगर लिखा गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से इंजीनियरिंग के सेमेस्टर 3 इम्तिहान के पर्चे सवालात में हैदराबाद को भाग्यनगर लिखा गया। इसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए कई ऑर्गेनाइजेशन ने रजिस्ट्रार उस्मानिया यूनिवर्सिटी को लेटर रवाना किया है और ये भी कहा कि हम हैदराबादी अवाम इस हरकत की शदीद मुखालिफत करते हैं और आपके शोबे ने ये बिल्कुल घटिया हरकत की है, यह हरकत करने वालों पर कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, एक बड़ी और खबर आ रही है रियासत कर्नाटक से। जी हाँ, कर्नाटक में H3N2 ये एक किस्म का वायरस है जिसको ये नाम दिया गया है H3N2। ये वायरस है, इस वायरस से पहली मौत का वाकया सामने आया है। कर्नाटक के बासन जिला में H3N2 वायरस के इन्फेक्शन की वजह से मौत का पहला मामला सामने आया है। इस वायरस को हांगकांग फ्लू भी कहा जाता है। वजारत सेहत के मुताबिक हांगकांग फ्लू से मुतासर मरीज को 24 फरवरी को अस्पताल में दाखिल किया गया था और 1 मार्च को और 10 मार्च को यानी गुज़िश्ता कल उसकी मौत हो गई है। खैर, बस हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ये तमाम आने वाले नए नए वायरस से हमारे इस प्यारे मुल्क की और पूरी इंसानियत और पूरी मानवता की हिफाजत फरमा। बल्कि हम तो ये भी कहते हैं कि अल्लाह जैसे कोरोना वायरस को तूने इस प्यारे देश से ख़त्म फरमाया, इसी तरीके से ये वायरस से भी इस वायरस को भी इस देश से ख़त्म फरमा और नफ़रतों का वायरस जो फैल रहा है और फैलाया जा रहा है उसको भी हमारे इस प्यारे देश से ख़त्म फरमा। बल्कि नफ़रतों के सौदागरों को तू हलाको बर्बाद फरमा। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मेरे निगाहों के सामने। बिहार से हमारे रिपोर्टर जीशान इलाई ने बताया कि बिहार के हर दिल अजीज पसंदीदा लीडर लालू यादव के करीबी लोगों के 15 ठिकानों पर पूरे मुल्क में यानी मुल्क गिर पैमाने पर छापे मारे गए हैं। दिल्ली, पटना, नोएडा, मुंबई में भी कार्रवाई हुई है। तीनों बेटियां जो लालू की तीनों बेटियां हेमा, रागनी और चंदा और बेटे तेजस्वी के घर पर भी सर्च ऑपरेशन किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना में आरजेडी के साबिक मेंबर असेंबली अबू दुजाना के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची, यहां भी तलाशी ली गई। साबिक एमएलए अबू दुजाना लालू के इंतहाई करीबी है और पेशे से बिल्डर है। इत्तलात है कि लालू यादव की तीनों बेटियों के घर पर भी सर्च ऑपरेशन किए गए हैं। खैर, 15 ठिकानों पर पूरे मुल्क में लालू प्रसाद यादव के करीबी लोगों के घरों पर, उनके ऑफिसेस पर छापे मारे गए हैं। ईडी पहुंची है। अब अपोजिशन पार्टियां तो पहले से कहते आ रही है कि इस वक्त बीजेपी पूरा बदले की भावना के साथ काम कर रही है और ईडीआई, सीबीआई और एजेंसियों का सियासी इस्तेमाल, नापाक इस्तेमाल, नाजायज इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के मुंबई से बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने है। जी हाँ, महाराष्ट्र की असेंबली में लव जिहाद को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। 1 लाख से जायद की तादाद जो पेश की गई बीजेपी की जानिब से, गोया कि अपोजिशन ने इसे झूठ का पुलंदा करार दिया। यानी अपोजिशन ने बताया कि बस लव जिहाद और लैंड जिहाद, बस ऐसे ही मामले लाकर बीजेपी और अभी जो नई हुकूमत बनी है शिंदे और फडणवीस की, अब यहाँ पर भी महाराष्ट्र में बीजेपी की हुकूमत बन गई, इसलिए बीजेपी ने यहाँ पर भी घटिया और नीच हरकत शुरू कर दी है और लव जिहाद के नाम पर बाकायदा माहौल को ख़राब कर रही है। खैर, प्रभात लोढ़ा के बयान के खिलाफ हाईकोर्ट में भी अर्जी दाखिल की गई है। जुमा को महाराष्ट्र असेंबली में लव जिहाद के मसले पर ज़बरदस्त हंगामा हुआ। आप जानते हैं कि बीजेपी ने बिल्कुल गलत अंदाज में और यूँ समझिए कि धोखा दिया और 1 लाख का आंकड़ा बताया था लव जिहाद का।
प्रभात लोढ़ा। तो समाजवादी के MLA रईस शेख ने कहा कि लोढ़ा को अब अपने तबसरे पर अपनी बात पर माफ़ी मांगना चाहिए कि ये लोग मुल्क को गुमराह कर रहे हैं और महाराष्ट्र का माहौल भी ख़राब कर रहे हैं। बीजेपी के एक लीडर शेलार ने लव जिहाद के वाक़यात को रोकने के लिए कानून बनाने का मुतालबा किया। यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी बीजेपी आ गई है, इसलिए गैर ज़रूरी मुद्दे उछाले जा रहे हैं और ख़ासतौर से वो मुद्दे जिससे नफ़रतें हिंदू मुसलमानों में फैले, बीजेपी वही उठाने का काम कर रही है और असल मुद्दों से ध्यान हटा रही है। आइए दिन बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि हिंदुस्तान की पहली सरहद पार तेल पाइपलाइन, हिंदुस्तान की पहली सरहद पार तेल पाइपलाइन, जी हाँ, 18 मार्च को हमारे हर दिल अजीज चहीते लाडले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना, ये दोनों मिलकर मुश्तरका तौर पर पहली पाइपलाइन का इफ्तिताह करेंगे, ओपनिंग करेंगे। जी हाँ, बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 18 मार्च को डीजल की नकलो हमल ट्रांसपोर्ट के लिए मुल्क की पहली सरहद पार तेल पाइपलाइन का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। आइए इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आप जानते हैं कि दिल्ली में शाहीन बाग उस वक्त शुरू हुआ था जब मुल्क की जालिम हुकूमत माहौल को ख़राब कर रही थी CAA और NRC के नाम पर। सैकड़ों लोग शहीद हो गए। 1 साल तक मुसलमान औरतों ने दिल्ली के शाहीन बाग को सजाया और पूरे मुल्क में फिर उसके तर्ज पर शाहीन बाग लगे और ज़ोरदार अंदाज में CAA और NRC, जो हिटलर कानून जालिम हुकूमत बीजेपी लाना चाह रही थी, उसकी ज़बरदस्त मुखालिफत हुई। 1 साल तक के कोई भी नहीं उठा। एहतजाज आंदोलन खुद हमने अपने शहर जलगांव में किया। आखिर कोरोना जब आया तो फिर सब उड़ गए। मगर मैं आपको बताऊं कि NRC के वक़्त जो मूवमेंट चलाई गई थी उस वक़्त बाकायदा माहौल को ख़राब भी दिल्ली में किया गया था और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। आज मेरी निगाहों के सामने खबर है कि गुलफशां फातिमा एक मुतहर्रिक, एक एक्टिव और एक दबंग मुस्लिम खातून है। NRC मूवमेंट की खातून है ये, जिसने NRC मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। आज उसे 1120 दिन हो चुके हैं, तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली तशद्दुद केस साजिश के इल्ज़ाम में गुलफशां फातिमा को गिरफ्तार किया गया था। ये इसलिए मैं सुना रहा हूँ कि आज इस बहादुर मुस्लिम खातून को 1120 दिन तिहाड़ जेल में बंद होकर हो चुके हैं और मुसलमान भूल चुके हैं। आइए आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के कदावर नेता मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के नायब वज़ीर आला भी थे, वो अभी फ़िलहाल जेल की सलाखों में हैं। जी हाँ, लेकिन इस वक्त कांग्रेस का बड़ा बयान आया है। कांग्रेस ने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी ये बीजेपी की बी टीम है और आप अगर गौर करोगे तो हर जगह इसने वोटों के तकसीम करने का काम किया है। कांग्रेस ने यह कहा कि जिस दिन आम आदमी पार्टी वोटों की तकसीम का काम बंद कर देंगी, केजरीवाल भी जेल में होंगे। यानी गोया के कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी इसी तरीके से जो लोग वोट काटने वाले हैं, मुसलमानों के भी हिंदुओं के भी, बीजेपी इन दोनों को इस्तेमाल करती है और जिस दिन इन लोगों ने वोट काटने का काम बंद कर दिया, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना बंद कर दिया, बीजेपी इनको भी उठाकर जेल में डाल देगी। इसलिए कभी कभी मुसलमान भी कहते हैं कि ये लोग वोट काट रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है, ये क्यों नहीं मानते हैं, क्यों जगह जगह जाकर मुसलमानों के वोट ख़राब कर रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी क्यों वोट ख़राब कर रही है। तो अब खबरें ये आ रही है कि जिस दिन इन लोगों ने वोट काटने का और बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम अगर बंद कर दिया तो उस दिन बीजेपी इनको भी उठाकर जेल में रख देगी। कांग्रेस ने ऐसा इल्जाम लगाया है। आइए इस वक्त एक बड़ी खबर गोवा से आ रही है। गोवा से हमारे नुमाइंदा रिपोर्टर जनाब अब्दुल्ला मुबारक ने बताया कि गुज़िश्ता 2 दिन पहले मडगांव गोवा का मारूफ तालीमी इदारा है जामियातुल मारिफ, इसका 23वां सालाना जलसा था जिसमें मुल्क के मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना इलियास भटकली साहब भी बाकायदा मुक़र्रिर ख़ुसूसी के तौर पर वहाँ मौजूद थे। मौलाना इलियास भटकली साहब ने बड़ी दर्दमंदाना अपील करते हुए असरी तालीम के साथ दीनी तालीम के हुसूल पर जोर दिया। वहीं पर यह कहा कि मुसलमान
اپنی ملی اور تہذیبی شناخت کی فکر کرے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا نے یہ بھی کہا کہ وہاں کے مسلمانوں سے بھی یہ کہا، اور بلکہ پورے ملک کے مسلمانوں سے یہ کہا کہ گوا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ماڈل بن سکتا ہے۔ مولانا الیاس ندوی نے کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی ملی اور تہذیبی شناخت کی فکر کرے۔ ڈاکٹر عبد القدیر صاحب نے بھی مسلمانوں نے گوا کو تلقین کی۔ اس موقع پر یہ بڑا شاندار پروگرام رہا۔ ہمارے نمائندہ رپورٹر عبداللہ مبارک نے بتایا کہ یہ پروگرام بڑا کامیاب پروگرام رہا۔ جامعۃ المعارف کے دائرہ کار کو دیکھتے ہوئے ایک نئی پختہ عمارت کی ضرورت ہے۔ اس کار خیر میں حصہ لینے کی بھی باقاعدہ اپیل کی گئی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جامعۃ المعارف کا قیام 1998 میں ہوا۔ گوا کے حالات آپ جانتے ہیں، گوا کے حالات اور تقاضوں کے پیش نظر ادارہ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ فی الحال اس ادارے میں 150 سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں اور بیرون ریاست اور گوا کے 90 طلبہ ماں قیام طعام جامعۃ المعارف کی کفالت میں ہیں۔ دینیات، ناظرہ، تحفیظ القرآن، عالمیت، ائمہ کورس، تخصص فی الافتاء کے علاوہ عصری تعلیم میں 10ویں جماعت تک انگلش میڈیم میں قوم کے نہالوں کو تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک استھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔